gained immense importance in rural development communication in the last 18 years. Today, we have gathered to celebrate the journey of 5 special writers who in the last 6 months have reported from some of the most rural and remote regions of our country and on issues that usually do not find a way to national mainstream media. So please welcome them. As the journey as SGMA awardee concludes today, we also have some really special people with us. A very warm welcome to esteemed board members. Charkha President Tilak sir is not here yet. And we have Secretary Ms. Usha ma'am here. And I guess Ms. Sumita ma'am has also not joined yet. And also we have Vijaya ma'am and Ella ma'am. And we also have Rajni Bakshi, a senior journalist and author who will be delivering the keynote speech today, and grassroots journalist Neetu Singh. So please welcome them. We would also like to welcome Malvina ma'am. Thank you, ma'am, for giving us an opportunity to give you a glimpse of what work Mario sir was dedicated to. And we actually feel his absence in everything we do right now. So yeah, and also we would also like to welcome Priyanka Pathak and Mukti Das, who will take us to the lane of rural hinterland through poems written by Baba Nagarjun, Katyayani and Gulzar Sahab. We also have our volunteer trainers who have been long associated with Charkha, are also present with us today. We also have Alka ji from Charkha's Maharashtra team and also Anshu ma'am with us. So I hand over to Shamsar now to proceed with the event. धन्यवाद दीपशिका। आज का ये दिन खास दिन है हमारे अवार्डीज के लिए, जिन्होंने पूरी मेहनत और रिसर्च के साथ महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी अपने इन्हीं अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए चरखा के लिए आर्टिकल लिखते रहेंगे। हमारे इन अवार्डीज की कामयाबी में जिस इंसान का सबसे बड़ा रोल था वो हम सबके अजीज, हमारे मार्गदर्शक, हमारे रहनुमा मारियो सर थे। मुझे याद आ रहा है कि मार्च में भी हम सब जब ऑफिस में बैठकर एसजीएमए अवार्ड सेरेमनी की प्लानिंग कर रहे थे, तब मारियो सर इस इवेंट को काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे बीच नहीं है। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया है, लेकिन वो आज भी हम सबके दिलों में बसते हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त जो भी लोग इस सेरेमनी में अभी मौजूद हैं, वो सब उनको याद कर रहे हैं, वो हम सबके दिलों में बसते हैं। और हमारी कोशिश भी है कि इस इवेंट को अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए आज की शाम मारियो सर के नाम डेडिकेट करते हैं। तो इस वर्चुअल इवेंट की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब 1 मिनट का मौन रखकर मारियो सर को श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं मेलविना नूरुना मैम, जो हमारे सर की वाइफ हैं और इस वक्त अभी मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम प्लीज इस सेरेमनी की शुरुआत आप करें, आपकी ब्लेसिंग से हो। मेलविना मैम। Good evening, everyone. Thank you, Shams, and thank you all the board members and everyone present for your nice words for my husband. I know
Mario was looking forward to this event, and I'm sure you will all do a good job because he had a lot of faith and trust in you all. All the best. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. और अब कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रेसिडेंट हमारे तिलक मुखर्जी सर हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा प्लीज वो अवार्डीज को हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। तिलक मुखर्जी सर। Can you see me? Okay. Well, I won't take much. I mean, I just take a half a minute or so. You guys are doing a very good job. It's a very proud moment that despite all the problems that we have faced and with the tragedy that has befallen us with Mario not being here with us, that you're able to organize this with the Sanjay Gandhi Media Awards, and we have all the awardees with us. So I would like to congratulate all of you and welcome the awardees and congratulate them also too. Go ahead, Shams. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप ये शब्द हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई करेंगे सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं हमारी सीनियर जर्नलिस्ट और सेक्रेटरी चरखा उषा राय मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे अवार्डीज के लिए हौसला बढ़ाएं, कुछ कहें, और साथ में कीनोट स्पीकर जो हमारी रजनी बख्शी मैम, उनको भी हम सबसे इंट्रोड्यूस कराएं। उषा मैम। मैम आपके म्यूट में है सर जी। Unmute, okay? Just now, yeah. Yeah. Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. I didn't know I was going to introduce Rajni. Anyway, it's wonderful to be here. I've been associated with Charkha since its inception. And I've seen the number of young people who have got awards, gone on, made a mark for themselves, have written a lot of articles which have been published, have grown in stature, have got into mainline newspapers, and are doing extremely well. I didn't know I was going to introduce Rajni to you all, but Rajni has also been associated with Charkha right from the beginning. She was a friend of Sanjay's, and she writes regularly, fairly regularly for the Indian Express, and her columns are always worth reading because they're very different from what people write. She picks up unusual issues. She also runs a post called Ahimsa Conversations, and hopefully she will tell us a little about it before she starts her speech. So it's over to you, Shams, and to Rajni. Okay, Rajni. बढ़िया। नमस्कार। मिस्टर शम्स, मैं अपना अब जो मैंने बोलना है अभी बोल दूं? जी मैम। सबसे पहले आप सबके तरह मैं अवार्ड विनर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बिस्मा, राजेश, रुखसार, रमा, सूर्यकांत, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और आपका भविष्य जो है वो पूरी तरह से उज्जवल और क्या कहें, रोमांचक रहे, एक्साइटिंग रहे। तो देखिए, मैं जब चरखा नया नया शुरू हुआ था, संजय ने इसका एक किस्म से इसकी कल्पना की, उसी समय उन्होंने तय किया कि वो नॉर्थ ईस्ट जाने वाले हैं। तो तब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अगर आप इसकी जो मतलब जो एक सेंट्रल पिलर चाहिए होता है कोई ऐसी चीज चलाने के लिए, तो मैं आपको सच में कहती हूँ बिना किसी भी एग्जैजरेशन के कि वो 1.5-2 साल का जो मैंने काम किया चरखा में और संजय के साथ, वो सच में मेरे वर्किंग लाइफ का एक सबसे खूबसूरत मोड़ था। और आज तक मुझे लगता है कि ये मेरी बड़ी प्रिविलेज थी कि मुझे ये मौका मिला। अब आप
लोगों ने बहुत कुछ ऑलरेडी संजय के बारे में सुना होगा। आई मीन आई डोंट नो कि मैं आपको नया क्या बताऊं, लेकिन अगर एक सेंटेंस में मुझे कहना हो ना तो वो इस प्रकार है कि अगर आपने ये गाना कभी सुना हो, शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ है, वही शैलेंद्र जिन्होंने जूता है जापानी लिखा था, और वो गाना है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह वाह वाह। दिस वॉज संजय। ये मतलब एक नटशेल में अगर किसी मतलब मुझसे कोई पूछे तो मैं कहती हूँ ये संजय का जीवन था। और वो देखिए ना, बहुत कम लोग होते हैं जो एक बने बनाए कामयाबी को उसके बिल्कुल मोस्ट फ्रूटफुल टाइम में उसको दूसरों के हाथ सौंप कर एक नई चुनौती का सामना करने, और वो भी एक खतरनाक जगह पर चले जाते हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि मैं आपसे यही बांटती हूँ, यही शेयर करती हूँ कि इसमें हमें संजय की ही कहानी से हमें क्या मिलता है। बहुत ही एक मैं मानती हूँ कि जरूरी और बहुत एम्पावरिंग हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और उसके 3 पहलू हैं। पहला है निडरता, दूसरा है रचनात्मक बेचैनी, और तीसरा है अब उसको ये कहे वन वर्ड आई कुड से बेधड़क जोश, मीनिंग के जो चीज असंभव दिख रही हो उसको संभव बनाने में आप लग जाएं। ये मेरी सोच में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बिल्कुल हमें मतलब हमारे जीवन में वो ऐसी ऊर्जा डालते हैं जो परिस्थितियों के उतार चढ़ाव के ऊपर आपको हमें ले जाती है। तो अब आप कहेंगे कि भाई अब आज के जमाने में फेयरलेस का क्या मतलब है, तो वो मैं क्लियर कर दूं कि, और ये आई एम सॉरी अगर मैं बहुत एक ऑब्वियस बात आपसे कह रही हूँ, फियरलेस का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि आपको डर ना लगे। अगर डर ही नहीं लग रहा तो फिर तो उसमें फेयरलेस क्या होना, यू नो यू इधर आपको कुछ सिचुएशन ठीक नहीं समझ आ रही इसलिए खतरनाक सिचुएशन में भी डर नहीं लग रहा। डर को महसूस करते हुए हम कैसे उससे क्रिएटिवली रचनात्मक रूप से कैसे उसको डील करते हैं, और जब जरूरी पड़े तो रणछोड़ भी होते हैं। आप सबने ये रणछोड़ शब्द मैं आई होप, अच्छा चलो मैं बोल ही देती हूँ जस्ट इन केस, कृष्ण भगवान का एक नाम है रणछोड़। वो रण मतलब फील्ड ऑफ बैटल, भूमि, युद्ध की भूमि, और छोड़ मतलब उससे भाग आना। फियरलेसनेस का वो भी एक हिस्सा होता है, ये जानना कि ये अभी की जो परिस्थिति है, ये इस समय, ये जो घड़ी है, इसमें मुझे बिना सोचे समझे जोखिम लेना जो है वो गलत होगा। तो ये इस सेंस में मेरा मतलब है फियरलेसनेस जो है एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। दूसरा कि ये रचनात्मक बेचैनी क्या है। देखिए आजकल की परिस्थिति में या कभी भी अगर आप देखा जाए तो हमेशा एक बनी बनाई पटरी रहती है, उस पटरी पे चल के भी आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं, लेकिन उस पटरी की सीमाओं को, वो जो मतलब ट्रैक पे ऑटो पायलट जिसे आजकल कहते हैं ना, या कंप्यूटर की भाषा में डिफॉल्ट, और जो कहते हैं सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग को हर वक्त चैलेंज करते रहने से जो क्रिएटिविटी निकलती है, उससे मेरा मतलब है ये रचनात्मक बेचैनी। और इससे फिर मैं अपने अनुभव से ही मैं आपको कह रही हूँ, जो कुछ कह रही हूँ, मेरे पास कोई वो ऐसे ग्रेट विजडम नहीं है। इससे फिर मैंने देखा है कि जो कुछ असंभव दिखता है उसको कर दिखाने की और उसको कर डालने की आप में हिम्मत आती है, और इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ऑडियंस के नंबर के प्रति एक वो क्या कहते हैं इंडिफरेंस पालना पड़े,
तो अब उषा जी ने कहा कि वो अहिंसा कॉन्वर्सेशंस का मैं अनुभव आपसे बताऊं, तो वो ये है कि मैंने एक दो पेपर से पूछा कि भाई मैं अहिंसा पे काम कर रही हूँ, तो आप लोग उस पे एक वीकली या फोर्टनाइटली सीरीज ले लीजिए। तो मुझे दोनों तीनों जगह से ना हो गई। उन्होंने कहा नहीं भाई, अभी आजकल ऐसा वीकली तो सवाल ही नहीं उठता, फोर्टनाइटली भी कौन पढ़ेगा कि अहिंसा पे लोग क्या कह रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि भाई ये तो मैं बहुत 19th सेंचुरी वाली सोच लेकर घूम रही हूँ, ये तो डिजिटल एज का जमाना है, क्यों ना मैं खुद ही इसको करना लग जाऊं। तो अगर आप सोचें तो एक तरह से ये मैं जो कर रही हूँ वो बेवकूफी भी कही जा सकती है, क्योंकि जितने भी मैं अहिंसा कॉन्वर्सेशन के वीडियो अपलोड करती हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ आज तक आई थिंक हमारा मैक्सिमम देखा हुआ वीडियो करीब 700-800 लोगों ने देखा है, जो कि आजकल की डिजिटल दुनिया में कुछ भी नहीं माना जाता। सब्सक्राइबर भी 733 थे आज सुबह जब मैंने देखा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत है। मेरे लिए 733 भी ऐसे लगता है कि जैसे मैं एवरेस्ट पे खड़ी हूँ, झंडा गाड़ रही हूँ। तो एक तो ये है कि नंबर, इससे मेरा कतई ये मतलब नहीं है, हाँ आप लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करिए, मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि हम लिख के अपने ही ड्रॉर में आर्टिकल लिख दें और खुश रहे, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमें असंभव को संभव बनाना है, तो ये बेधड़क जो एक और डिफायंट क्रिएटिविटी, एक पहले जो था वो रेस्टलेस क्रिएटिविटी और दूसरा डिफायंट क्रिएटिविटी को अपन पकड़ के चलें तो सच में बहुत बड़ा वो यूनिवर्स है पॉसिबिलिटी का। अब आजकल की आई क्लोज बाय जस्ट शेयरिंग विद यू जो मुझे आजकल की सो कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी लगती है, और ये दुनिया भर की कंसर्न है, ये कोई हमारी केवल हिंदुस्तान में नहीं है, कि जितनी ज्यादा हमारे पास स्पेस खुली है टेक्नोलॉजी के कारण एक दूसरे से अपनी बात कहने की, न्यूज पहुंचाने की, अलग अलग किस्म की न्यूज पहुंचाने की, और खास करके अब जो है क्योंकि इतने चैनल खुल गए हैं, चैनल से मतलब मेरा मतलब है साधन अपनी बात को आगे मिलियंस तक पहुंचाने के, कि वो भी हो गया कि जो जर्नलिज्म का पहला लेसन सिखाया जाता था कि जी ओनली मैन बाइट्स डॉग इज न्यूज, है वो भी आई थिंक अब जो है लागू नहीं होता, क्योंकि इतने लोग इतने प्रकार की बात कह रहे हैं, इतने अलग अलग ढंग से कह रहे हैं, अलग अलग डायमेंशंस में कह रहे हैं, फिर भी हम, मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, जो कि मुझे लगता है कि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि भैया ये क्या हो रहा है, हम घृणा और हिंसा, मतलब वर्बल हिंसा, गाली गलौज, आप अभी देख रहे हैं ना जो ये मैच को लेकर हो रहा है इंग्लैंड में, प्लेयर्स के खिलाफ जो हो रहा है, तो एक किस्म से ये लगता है कि दिस इज एन इम्पॉसिबिलिटी, हाउ डू वी स्टैंड अप टू इट। उसमें मेरा आपसे आग्रह है कि अगर हम ये फियरलेसनेस, क्रिएटिव रेस्टलेसनेस एंड क्रिएटिव डिफायंस को अगर हम आजमा के देखें, एक्सपेरिमेंटली हम देखें, तो बहुत कुछ मुझे लगता है संभव है, और आप लोग करके दिखा रहे हैं। आप लोग ये अवार्ड सेरेमनी उस संभावना को रियलाइजेशन की वो है, एक प्रूफ है, और उसका जीता जागता सबूत है। तो बस इस ताकत को आप बढ़ाते रहें, आपके कई साथी और अगले कई सालों में जितने भी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे वो, और लास्टली हम सबको ये इस किस्म के प्लेटफॉर्म और फोरम इसलिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक और जो बड़ी विडंबना आ गई है कि एक तरह से तो हम सब मिल सकते हैं। अब ये देखिए ना, हम सब अलग अलग शहरों में बैठे होंगे, लेकिन आज इस घंटे के लिए हम इकट्ठे हैं, लेकिन इससे ऑटोमेटिकली सॉलिडेरिटी नहीं बनती। हमें एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी के संबंध बनाने के मुझे लगता है और एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे।
नहीं तो मैं ये देख रही हूँ कि वो भीड़ में अकेला जो अनुभव है वो बहुत लोगों को हो रहा है। और तो मेरी सबसे ज्यादा प्रार्थना ये है कि ये अवार्ड से जुड़ी हुई और इस चरखा से जुड़ी हुई जो एक कम्युनिटी है वो ये सॉलिडेरिटी बांधने का भी एक साधन है। अब मतलब मैं जानती हूँ कि वो है ये ऐसा साधन। मेरी उम्मीद और मेरा सपना ये है कि ऐसे ये मिलियंस ऑफ लोगों को इसके जरिए से वो सॉलिडेरिटी मिले। और मैं अपनी बात वापस शैलेंद्र के ही एक लाइन से मतलब रोकती हूँ अपनी बात को यहाँ कि तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यही सपना लेकर संजय घोष जिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब इसी सपने को आगे ले जाने के लिए चरखा में इकट्ठे होते रहेंगे। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ शामिल और आपके साथ इंक्लूड करने का। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बहुत आपसे आज सीखने को मिला हम सबको। मुझे उम्मीद है कि आपके जो जो इतना अच्छा आपने फॉर्मूला भी एक बताया, हम सबको जो सीख दी है, मुझे उम्मीद है मैम कि हमारे जो अवार्डीज हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो राइटर हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं, उनके लिए बहुत कुछ उनके जीवन में बहुत ही कारगर साबित होगा। कम वक्त में आपने बहुत कुछ सिखाया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त आ गया है जिसके लिए वर्चुअल समारोह आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, संजय घोष मीडिया अवार्ड 2020 के अवार्डीज को सम्मानित करने का। इसके लिए मैं अपनी कलीग मिस तन्वी लोमेश से अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तन्वी। Thank you, Shamsar. Very good evening to all. It's a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of our Sanjay Ghosh Media Awardees, who have made us all proud. Now, moving towards, let's begin with the short video we made to showcase their work. Let me just share the screen.
A big round of applause for all our awardees for their tremendous efforts. Now, please join me as we welcome our awardees to speak a few words regarding their journey. So let's start alphabetically. I would like to call our awardee Bisma Bhatt from Srinagar, Jammu and Kashmir. Her theme was violence against women in rural India. Welcome, Bisma. Please share your journey with us. Dear board members, Charkha team, and my dear fellow awardees, very good evening to everybody. I'm deeply honored to have been one of the winners of Sanjay Ghosh Media Award 2020. I'm sincerely grateful to Charkha team for recognizing my work for this award. So as this award is dedicated to women in rural India, so in Kashmir, particularly after abrogation of Article 370, the crime against women got increased and it was very less reported. So after I was selected for this award, I got chance to highlight issues related women, and it got published in national media, so it got highlighted there. I think this award helped me to highlight the issues that women faced in Kashmir, and maybe government are making these steps to build to re-establish Women's Commission here to just stop the crime against women. Thank you. Thank you, Bisma. Now, moving ahead, I would like to call our awardee, Rajesh Nirmal from Uttar Pradesh. His theme was role of women in decision making at block, district, village level. Welcome, Rajesh. हेलो एवरीवन, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चरखा की पूरी टीम को और बाकी सभी लोगों को जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी जर्नी बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही, बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला, क्योंकि मैं चरखा के लिए लिखता था और उस सबसे ज़्यादा मैं परफॉर्मेंस टेक्स्ट और परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें लिखता था। तो जब मैं स्पेशली इस अवार्ड के लिए लिखने के लिए ग्राउंड पे गया, तब बहुत सारी चीज़ें और अंडरस्टैंड हुई कि कैसे जब एक कोई नीति बनाई जाती है, एक पॉलिसी बनाई जाती है, और वो जब ग्राउंड पे पहुंचती है, उसको पहुंचने में इतनी चुनौती होती है, उसको पहुंच के इम्प्लीमेंट होने में इतनी चुनौती होती है, और उसके बीच में जो दिक्कतें हैं उनको आइडेंटिफाई करना। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए कि डिसीजन मेकिंग के लिए मैं एज ए मेल जब मैं पहुंच रहा हूँ गाँव में, तो सबसे पहले मुझे जिनसे बात करनी है उनके बेटे से बात करनी पड़ रही है, उनके पिता से बात करनी पड़ रही है, उनके हस्बैंड से बात करनी पड़ रही है। तो वहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और मतलब हाँ, जो हम डिसाइड करते हैं लिखने के लिए, लेकिन हम लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में पैरेलली ये कॉन्ट्रडिक्शन जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है वो पैरेलली खड़ा होता जा रहा था। मुझे याद है अभी जब ये अवार्ड मिला, और वो अवार्ड मिलते के साथ ही वो सारे चेहरे मेरे सामने आ गए। एक जो महिला ग्राम प्रधान थी, एक बार वो मिली, तो वो मुझे कहती हैं कि मैं तो जी बाबू साहब के फार्म में काम करती थी और उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़वा दिया। तो मैंने कहा अच्छा। कह रही अब जब भी पेमेंट आती है, जो भी पैसा आता है, वो बाबू साहब मुझे ले जाते हैं, मैं अंगूठा लगा देती हूँ और वो पैसा ले लेते हैं। तो वो और मुझे मेरी मजदूरी दे देते हैं उस पेमेंट में से कुछ कुछ। तो मेरे लिए वो पूरा सिनेरियो ही बदल गया कि कैसे पहले वो फार्म के लिए मजदूरी करती थी, और अब उसको एक मौका मिला भी है पॉलिसी के थ्रू कि वो मेन स्ट्रीम उसमें फ्रंट लाइन में आए, लेकिन उसमें भी जो
लूप होल्स हैं उसके थ्रू वो फिर से एक प्रकार की नई तरह की मजदूर बन गई है। तो वो काफी समझने वाला भी था और डेफिनेटली हाँ, क्योंकि मेल था तो मुझे अपने पहुंचने के लिए भी 5 बार तरह तरह के तरीके ढूंढने पड़ रहे थे कि कैसे मैं बात करने तक पहुंचूं। एक और ग्राम प्रधान से जब मिला तो उनसे तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा था, तो बड़ी मुश्किलों से वहां तक पहुंचे। फिर उनको जिस तरह से बताया गया होगा कि तुम्हें तो यही बोलना है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी तरह से काम कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला बहुत सारी तरीके से, उन्होंने बताया कि मैं अपनी तरह से काम कर रही हूँ, मैं अपने निर्णय खुद लेते हैं या तरह तरह के। फिर सडनली मेरा एक ऐसे ही सवाल आया कि मैम आप जो बोल रहे हो क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ? एंड वो 2 मिनट का साइलेंस, और उन्होंने बोला कि इसके लिए तो मुझे अपने घर पे बात करनी पड़ेगी, अपने हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। तो वो तो इस तरह की चीजें थी, तो हाँ समझ में आया। और बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे कैसे हमें सोच समझ के कैसे चलना पड़ता है और उसको महसूस करना पड़ता है, वो इस जर्नी में मैंने बहुत अंडरस्टैंड किया। तो मैं फिर से सभी लोगों का, चरखा की पूरी टीम का, चेतना मैम का और शम सर और स्पेशली मारियो सर, जो कि पूरे टाइम अवेलेबल रहते थे बताने के लिए भी कि क्या स्ट्रैटेजी रखो, कैसे चीज़ों को डील करो। बहुत दुखद है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो भी है हमने फाइनली इससे बहुत अंडरस्टैंड करने को मिला। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rajesh, for sharing your journey with us. Now I would call our awardee Rama Sharma from Rajasthan. Her theme was challenges faced by adolescent girls in rural India. Please welcome Ramaji. सभी को मेरा नमस्ते और चरखा की सारी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस अवार्ड के लिए आप लोगों ने सेलेक्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं ऐसी आप लोगों ने मुझे थीम दी जो वाकई में उन पे लिखना, उस पे चर्चा करना, उसको सोचने समझने की इस अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मुझे जो थीम दी गई थी किशोरी बालिकाओं की समस्या, तो मैं मानती हूँ कि अगर हम ये सोचें लंबे ब्रॉड माइंड से ये सोचते हैं तो महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, आगे चलकर जो महिलाएं हिंसा की शिकार होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत किशोरी बालिकाओं से ही, उसकी घर परिवार से, वहां से शुरू हो जाती है, उसी उम्र से। तो मुझे जो इस मुद्दे पर लिखने के लिए जब दिया गया, जो मैं समाज में गई, समुदाय में गई, उन महिलाओं से, उन लड़कियों से मिली, उन परिवारों से मिली, तो मुझे लगा कि उन लड़कियों को खुद को ही पता नहीं है कि हमारे साथ ऐसी समस्याएं भी हैं, मतलब वो उन सब चीजों को समस्याएं मानती ही नहीं। तो जब मैंने उन्हें बातचीत की, उन्हें समझाया, उनसे चर्चा की, तो उन्हें लगा कि वाकई में ये जो सब चीजें हमारे साथ हो रही है, भेदभाव जो है, कि वो समझती है कि भेदभाव जब होता है तो वो नॉर्मल चलती है। तो जब मैं उनके ऊपर लिखने लगी, उनसे बात करने लगी, तो उनको भी महसूस हुआ, मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं ये एक महिला हिंसा को रोकने के लिए ये पहला कदम है कि हम किशोरी बालिकाओं के साथ बातचीत करें, उन्हें समझाएं और उनको अवेयर करें, जागरूक करें और उनको उनकी समस्याओं के बारे में समझाएं, तभी वो अपनी आवाज को बुलंद करके आगे उठा सकती है और बढ़ा सकती है, उनको जागरूक अवेयर हो सकती है, तो आगे कहीं ना कहीं चल के वो हिंसा को रोक सकती है उनके साथ होने वाली। तो फील्ड में, क्योंकि मुझे लिखने का इतना अनुभव पहले नहीं था, लेकिन चरखा में जब मैं जुड़ी, 4 दिन की हमारी जो ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग से जुड़ने के बाद में मुझे लगा कि हम समाज में लेखन के माध्यम से भी बहुत सी समस्याओं को लोगों के सामने रख सकते हैं, जो बहुत इंटीरियर में जाके जो छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं, जो ऐसी बातें हैं जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो यदि उन चीजों को लोगों के सामने रखेंगे तो उनके ऊपर समाधान होना जरूरी है, चाहे सरकार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे लोगों का हो। तो चरखा ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और जो इस अवार्ड के तहत चरखा ने मुझे जो जोड़ा और एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जो मुझे एक पहचान दी है, क्योंकि इस अवार्ड के मुझे लोग स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जानने लगे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि एक नई पहचान मुझे मिली है। और जो सहयोग इस अवार्ड के तहत मुझे मिला, उससे हाँ भी लॉकडाउन के तहत उससे भी बहुत सहयोग जो मुझे मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलकर मैं ऐसे ही महिलाओं की, किशोरी बालिकाओं की नहीं, बहुत सी समस्याएं जो समाज में, चाहे महिलाओं की हो, चाहे पुरुषों की हो, चाहे लड़कों की हो, चाहे लड़कियों, हर प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनके ऊपर लिखने का प्रयास करूंगी और चरखा के साथ निरंतर जुड़े रहना चाहूंगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Ramaji. Now moving ahead, I welcome our awardee Rukhsar Kausar from Jammu and Kashmir Border District, Poonch, to share her journey with us. Her theme was challenges faced by adolescent girls in rural India. Welcome, Rukhsar. Good afternoon. नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे रुखसार, पहले माइक को थोड़ा और पास पकड़ो, आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। जी मैम, आप ठीक है? बेटर है पहले से। सबसे पहले तो मैं सबका बहुत अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अपने पुलिस मेंबर का और मेरी चरखा टीम है, अब तक जो भी जितने भी चरखा टीम के जो सपोर्ट करते थे, सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। जब से मैं चरखा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी, तब से लिखने का शौक तो हो ही गया था और एक चीज़ और भी समझ में आई थी कि तलवार से ज़्यादा कलम में ताकत है। एक कलम भी किसी की चेयर छीन भी सकती है और किसी को चेयर दे भी सकती है। तो उसके बाद आस्ते आस्ते मेरा इंटरेस्ट बन गया एडोलेसेंट गर्ल्स पे लिखने का। फिर मैं सोचती थी कि मतलब कैसे लिखा जाए, कहाँ कैसे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब संजय अवार्ड में सिलेक्शन हुई, तो मैं कहूँगी कि अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये एक मौका मिला और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि मुझे पहले पता नहीं था कि मतलब पुंछ एरिया में गर्ल्स को इतने सारे इश्यूज होते हैं कि छोटी उम्र में उनकी शादी भी करा दी जाती है, उनको स्टडी के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, घर से निकलने नहीं देते। तो उन चीज़ों पर जब लिखा और बात की तो तब पता चला कि इतने सारे इश्यूज हैं और हम कलम से कुछ बदलना चाहिए। और ज़्यादातर एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो है शादियाँ होती हैं, अर्ली मैरिज लॉकडाउन में ज़्यादा होती है, क्योंकि सब बच्चियाँ घर चली गई और स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो तब ज़्यादा शादी केसेस हुए। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट भी जब हमने रिसर्च किया, फील्ड पर गई मैं और बहुत सारे कंसर्न डिपार्टमेंट में बात की और बहुत सारे ऑफिसर्स से बात हुई, तो उनके साथ इतना अच्छा कॉन्टैक्ट बन गया कि अब नेक्स्ट भी अगर मैं कुछ करूँगी, अगर कुछ लिखूँगी तो मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है रुखसार। तो उन्होंने कहा कि आगे भी सपोर्ट मिलेगी, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई यहाँ पे कोई मिस है हमारे साथ, और मतलब 3 आर्टिकल तक वो मेरे साथ थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट की और और यही दुआ करूँगी कि उनकी सपोर्ट मिले। और बाकी चेतना मैम, शंकर सर जो अब तक मुझे सपोर्ट करके आ रही हैं, इंशाल्लाह आगे भी मैं ट्रांसफर की काम करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Rukhsar, for sharing your journey with us. Now, moving ahead to our last awardee, Suryakant Devangan from Chhattisgarh, to share his journey. His articles are based on theme rural women in decision making at block, district, village level. Please welcome Suryakant. Yeah. सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और चरखा परिवार को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस अवार्ड के लायक समझा और इसके तहत मुझे लिखने का मौका मिला।
और इस अवसर पर मैं मारियो सर को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना मेरा लेखन मैं मानता हूँ कि वो अधूरा रहेगा, क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ को लेकर गाइड करते रहे कि आपको कैसे क्या लिखना है। और रही बात लिखने की, जब मैं खुद अपने फील्ड पे गया अपने विषय को लेकर लिखने के लिए, तो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की और देखा कि जैसे हम सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम चले जाए तो लोग हमसे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते, या फिर गांव क्षेत्र की महिलाएं हमसे बात नहीं करेंगी, अपने बारे में कुछ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इसके मतलब ठीक विपरीत हुआ मेरे साथ। लोगों ने बहुत अच्छे से बातचीत किया, हालांकि थोड़ी सी समस्या भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे से बातचीत किया और सारी चीजें उन्होंने बताई। जैसे अगर मैं अपने पहले आर्टिकल की बात करूं कि महिला कमांडो का एक दल है यहाँ महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में, तो वो महिला कमांडो के जो दल है उन्होंने खुद से निर्णय लिया कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, ना ही गांव में शराब बनाया जाएगा। तो वो महिलाओं का एक दल जो है पूरे रात में मतलब 10 से 11 बजे तक वो लोग गश्त करते हैं अपनी टोली बना के, जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं। 25 महिलाओं का ये सदस्य है और उन्होंने अपने दम पे पूरे गांव को नशा मुक्त बना दिया है। इसमें प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। तो इस तरह से चीजें मुझे जानने को मिली और महिलाओं ने भी काफी अच्छे से सपोर्ट किया। इसी तरह एक पानी की समस्या को लेकर मैंने देखा कि इतने साल बाद भी आज तक मतलब उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। वो क्या कहते हैं, नदी का पानी पीते हैं या फिर नाले, उनके घर के आसपास से जो नाला जाता है वहां से वो पानी लेके आते हैं वो पीते हैं। उसके लिए भी उन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर हर दिन तय करना पड़ता है। तो जब मैं वहां तक पहुंचा, उनसे बातें की, तो उन्होंने सारी चीजें बताई और अच्छे से। और जब हम हमारा ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ और प्रशासन तक ये बात पहुंची, तो वहाँ जो एक पुराना हैंडपंप था जो काफी समय से खराब हो गया था, उसे प्रशासन ने रिपेयर करवाया और वो शुरू हुआ। हालांकि अभी पानी थोड़ा बहुत ही आ रहा है, लेकिन एक शुरुआत हो गई है। तो इस और बाद में वहाँ के लोगों ने मुझसे कॉल करके ये भी बताया, काफी खुशी जाहिर की कि हमें पानी की सुविधा अब मिलने लगी है। और वहाँ के सरपंच ये कहते हैं कि नल जल योजना के तहत हम बहुत जल्दी काम शुरू करेंगे या टेंडर होने वाला है। तो इस तरह से जो जानकारी मुझे मिली और लोगों से एक तरह से कनेक्ट होने का एक अलग अनुभव रहा, तो काफी सीखने वाला रहा मेरे लिए भी। और ये काफी मतलब कहने का मतलब है ये कि आने वाले समय में भी ऐसे विषयों पर लिखने का एक अवसर मिलेगा इनके जरिए, क्योंकि अभी भी मैं उनसे जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा अनुभव रहा। और कुल मिलाकर मैं चरखा परिवार को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये अवार्ड दिया गया। धन्यवाद। Thank you, Surekant, for sharing your journey with us. And many congratulations to all our awardees. I would now request Shamsar to take over the ceremony. थैंक यू तन्वी। और एक बार फिर से मैं चरखा टीम की तरफ से अपने तमाम अवार्डीज को शुभकामनाएं देता हूं। उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करूंगा शुमिता घोष मैम से कि मैम आप भी हमारे अवार्डीज के हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। शुमिता घोष मैम। सभी को, और सॉरी मेरा लाइन थोड़ा बहुत अनस्टेबल इंटरनेट है, तो अगर मैं वीडियो शुरू करूंगी तो आवाज ठीक से नहीं आएंगे, तो माफी चाहती हूँ उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द अवार्डीज। आपने इतनी मेहनत करके, इतनी ब्रेवरी दिखा के, इतने संघर्ष करके अच्छे स्टोरीज लिखे जो हकीकत है आपके वहाँ, जो समस्याएं है, जो वास्तविकता है, उनको दोहराया। एंड ऑल द मोर स्ट्रेंथ टू यू कि आप और भी लोगों तक पहुंचेंगे, अब उनके कहानियां आप सामने लाएंगे। एंड whether or not the world listens, remember that there are people always who are listening and who are reading the stories that you write. So congratulations, well done, and all the best for the coming future. Thank you. Thank you, ma'am, for your lovely words. Now we would like to invite Priyanka Pathak and Mukti Das. Priyanka is a PhD scholar from JNU who works on performance practices and artworks in contemporary context of urban waste, ecology of cityscapes and its margins.
A graduate from the National School of Drama, Priyanka has been practicing theatre as a designer, performance maker, and performer for 17 years now. We also have Mukti Das, who is a graduate from National School of Drama, an actor and director. He is a visiting faculty at Whistling Woods and Anupam Kher's Actor Prepares, the two leading film institutes in India. Priyanka and Mukti, the floor is all yours. Thank you very much, Deepshikha, for giving such a lovely introduction. हम आप सबकी इतनी बहादुरी की कहानियां सुन के बहुत ही स्तब्ध हो गए हैं। हमें हमारी कविताएं हैं जो वो आप इस सब के सामने छोटी लग रही हैं, लेकिन फिर भी कविता के संदर्भ में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। जैसे रजनी बख्शी मैडम ने इन द बिगिनिंग कहा बहुत सारा कि सॉलिडारिटी के आसपास की जो चीजें हैं वो हमें ढूंढनी पड़ेंगी, और आप लोगों का जो लेखन है वो सॉलिडारिटी लाने में बहुत बढ़िया से काम करता है, और यही काम कविता भी करती है, ऐसा मुझे लगता है। कविता जो है वो साहस देने का बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये इसका हमारा इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कविताओं ने एक बहुत ही बड़े बड़े मोबिलाइजेशन किए हैं, स्पेशली इन आवर हिस्ट्री। और जैसे कि कुंवर नारायण साहब कहते हैं कि कविता जो है वो वक्तव्य नहीं है अपने बारे में, कविता गवाह है, कविता विटनेस है हमारे समय का, जो हमें हमारे ही समय को कैसे देखना है उसका संदर्भ देती है, कॉन्टेक्स्ट में डाल देती है। तो आप लोग तो ये बात अच्छे से जानते ही हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेके मेरे साथी मुक्ति से आग्रह करूंगी कि वो अपनी कविता आपके सामने पेश करें। थैंक यू सो मच प्रियंका। मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मैं आप लोगों के सामने एक बाबा नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है घिन तो नहीं आती, वो आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। पूरी स्पीड में है ट्राम, पूरी स्पीड में है ट्राम, खाती है दचके पे दचके, सटता है बदन से बदन, सटता है बदन से बदन, पसीने से लथपथ छूती है निगाहों को, कत्थे दांतों की मोटी मुस्कान, बेतरतीब मूंछों की थिरकन, सच सच बतलाओ घिन तो नहीं आती है, जी तो नहीं करता है। कूली मजदूर हैं, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल धुआं भाप से पड़ता है सबका, थके मांदे जहां तहां हो जाते हैं ढेर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन। अरे आकर ट्राम के अंदर पिछले डिब्बे में बैठ गए हैं, इधर उधर तुमसे सटकर, हाँ हाँ तुमसे सटकर, आपस में उनकी बात कही, सच सच बतलाओ जी तो नहीं करता, घिन तो नहीं आती। दूध सा धुला सादा लिबास है तुम्हारा, दूध सा धुला सादा लिबास है तुम्हारा, निकले हो शायद चौरंगी की हवा खाने, बैठना है पंखे के नीचे अगले डिब्बे में। ये तो बस इसी तरह, अरे ये तो बस इसी तरह लगाएंगे हंसी ठहाके, सुरती फाकेंगे, भरे मुंह बात करेंगे अपने देश कोस की। सच सच बताओ अखरती तो नहीं इनकी सोहबत, जी तो नहीं कुड़ता, घिन तो नहीं आती ना। शुक्रिया। ये बाबा नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है घिन तो नहीं आती। अब मैं चाहूंगा कि प्रियंका पाठक आपके सामने एक छोटी सी कविता पेश करे जिसका शीर्षक है 7 भाइयों के बीच चंपा। इस कविता को लिखा है कात्यायनी। प्रियंका। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, हा हा हा
ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, लेकिन वहां अमर बेल बनकर उगी। अमर बेल झरबरी के कांटों के साथ बीहड़ जंगल में चंपा अमर बेल बन सयानी हुई। फिर से घर में आधम की। सात भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। वहां एक नील कमल उग आया। जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई। देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई झमटकर। दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। थैंक यू वेरी मच। और अगली कविता अब आपके सामने रखेंगे मेरे साथी मुक्तिदास। जी, ये कविता है लास्ट ईयर गुलजार साहब ने ये कविता लिखी थी। आपको पता ही है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कैसे हमारे मजदूर साथियों का जो हाल हुआ, शहरों से कैसे वो अपने गांव गए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो आपकी इजाजत से मैं पढ़ना चाहूंगा। महामारी लगी थी, महामारी लगी थी, घरों को भाग लिए थे सभी मजदूर कारीगर। महामारी लगी थी, घरों को भाग लिए थे सभी मजदूर कारीगर। मशीनें बंद होने लग गई थी शहर की सारी, उन्हीं से हाथ पांव चलते रहते थे। मशीनें बंद होने लगी थी शहर की सारी, उन्हीं से तो हाथ पांव चलते थे, वरना जिंदगी तो गांव ही में बो के आए थे। वो 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन और 5 एकड़, कटाई बुआई सब वही तो थी। ज्वारी धान मक्की बाजरे सब, वो बंटवारे चचेरे और ममेरे भाइयों से। फसाद नाले पे, पर नालों पे झगड़े, लठेत अपने तो कभी उनके। वो नानी दादी और दादू के मुकदमे, सगाई शादियां खलियान। सूखा बाढ़ हर बार आसमां, बरसे ना बरसे कौन जाने। मरेंगे तो वहीं जाकर जहां जिंदगी है। यहां तो जिस्म लाकर प्लग लगाए थे, निकालेंगे प्लग सभी ने, और कहा चलो अब घर चले, और चल दी। मरेंगे तो वहीं जाकर जहां जिंदगी है। महामारी लगी थी, घरों को भाग लिए थे सभी मजदूर कारीगर। शुक्रिया। थैंक यू। ये एक छोटी सी कविता थी गुलजार साहब की। और जैसे कि प्रियंका ने अभी कहा कि जो कविताएं होती हैं वो वक्त तो रुकता नहीं, वक्त तो चले जाते हैं, लेकिन कविता एक हिस्टोरिकल एक विटनेस के तौर पे हमारे बीच मौजूद रहती है। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से हालात भी ठीक हो जाए और मजदूर और इनके बीच अच्छी अच्छी और कविताएं लिखी जाएं। जाते जाते फिर कुंवर नारायण की वो लाइन से मैं इसका समअप करना चाहता हूँ कि कविता व्यक्तित्व नहीं गवाह है, कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, तो कभी हमसे बाद। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका मुक्ति जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आज की सेरेमनी को आप लोगों ने
चार चांद लगा दिया अगर मैं ये कहूँ तो। वाकई बिल्कुल सही कहा कि कविता जो है वो गवाह है समय का, बिल्कुल। और आज आप लोगों की प्रस्तुति भी एक गवाह बन गई इस सेरेमनी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं इनवाइट करता हूँ, अब आमंत्रित करता हूँ हमारी गेस्ट स्पीकर नीतू सिंह जी को। नीतू जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे दें, छोटा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं इनके बारे में कि नीतू जी जमीन से जुड़ी एक पत्रकार हैं, यानी ग्रास रूट जर्नलिस्ट हैं, जो पिछले 10 सालों से ग्रामीण भारत में महिलाओं और बाल अधिकारों यानी वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स पर रिपोर्टिंग कर रही हैं। उनके इस बेहतरीन काम के लिए 2020 में उन्हें चमेली देवी जैन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान में नीतू जी शेड्स ऑफ रूरल इंडिया नाम की एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है, उसकी वो संस्थापक हैं। और आज वो संकट के समय ग्रामीण रिपोर्टिंग, कैसे कोविड-19 ने भारत में ग्रामीण रिपोर्टिंग के संकट को गहराया है, यानी रूरल रिपोर्टिंग ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस, हाउ कोविड-19 हैज डिपेंडेंट रूरल रिपोर्टिंग क्राइसिस इन इंडिया, इस विषय पर अपने विचार रखेंगी। और उनके इस स्पीच के बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। हमारे जितने भी अवार्डीज हैं या हमारे जो राइटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको कुछ सवाल करना हो तो वो पूछ सकते हैं। नीतू जी। थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। और निश्चित तौर पे मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस अवार्ड सेरेमनी में आके। तो मैं सबसे पहले तो सभी अवार्डी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। चरखा को धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक अच्छी मुहिम पिछले कई वर्षों से शुरू की है ग्रामीण पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए। ग्रामीण पत्रकारिता में जो जर्नलिस्ट काम करते हैं रूरल क्षेत्रों में, उनको आप एक फेलोशिप दे रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कोशिश है, क्योंकि अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी मुझे हमेशा से कम महसूस होती आई है कि इसमें लड़कियों की भागीदारी बहुत कम रही है। और अगर हम रूरल क्षेत्रों की बात करें तो ये संख्या गिनती की कुछ उंगलियों पे सिमट कर रह जाती है, बहुत कम संख्या है। आपने जो जिस विषय पे आज मुझे बोलना है कि पिछले 2 साल से देश में कोविड की जो लहर चल रही है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो खबरें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं, वो कितना बाहर निकल कर आए। ये बात किसी से छिपी नहीं रही है कि मीडिया में बीते 2 सालों में कितनी क्राइसिस रही है, चाहे वो फंडिंग को लेके हो, चाहे वो दूसरे तरह से रही हो। अगर मैं रूरल जर्नलिज्म की बात करूं तो एक तो जर्नलिस्ट पहले से ही कम थे, और ग्रामीण क्षेत्रों में जा के उनके मुद्दों को बाहर निकालना काफी मुश्किल रहा। मैंने खुद भी बहुत सारी खबरें नहीं दिखी मुझे। मैं बीते 2-3 महीने से गांव में थी, और पिछले 1.5-2 साल से भी हमने जब ये कोविड रहा है, हमने चंबल के काफी सारे गांव में जाके रिपोर्टिंग की, अलग अलग जगहों पे जाके रिपोर्टिंग की। तो मैंने ये पाया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों को बड़े पैमाने पे उठाया जाता तो शायद हम सरकार को ये आईना दिखा पाते, सरकार को ये पता चल पाता कि इस कोविड में गाँव की महिलाओं पे कितना असर पड़ा, बच्चियों की शिक्षा पे कितना असर पड़ा, बच्चों के स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ा, कुपोषण की क्या स्थिति रही। जब पहली बार लॉकडाउन देश में लगा था मार्च 2020 में, उस समय हम कितना तैयार थे, खासकर हम, शायद हमारा पूरा देश इसके लिए तैयार नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हमने उस टाइम पे रिपोर्टिंग की, कई ऐसे सारे पहलू हमने निकाल कर हम सामने ले आ पाए कि जो महिलाएं, जो लड़कियां पिछले मुश्किल से उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल पा रहा था, पर बीते 2 साल में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां उन्होंने फेस की, उससे वो कई और साल पीछे चले गए हैं। गाँव की जो वास्तविक स्थिति जो हम देखना चाहते थे, वो हमें नहीं पता चल पाया। हमें ये पता चला कि लखनऊ या बाकी के हिस्सों में जो शमशान घाट की परिस्थितियां रहीं, या जो हमें नहरों में लाशें मिली, नदियों में, पर गाँव में क्या जो मौतें हुई वो कहीं दर्ज हो पाई, हमें बड़े स्तर पर उसकी रिपोर्टिंग नहीं मिली। मैंने उसकी कुछ रिपोर्टिंग की, पर मैं कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हूँ कि उसको मैं बहुत बड़े पैमाने पे ले जा पाती। छोटे स्तर से ही सही, मैं चंबल में गई थी पिछले इसी कोविड में, अप्रैल लास्ट में। तो वहाँ के शमशान घाट जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक लगातार चिताएं जलती रही, और ये वो चिताएं थी जिन्हें ये पता ही नहीं था कि मौत किस वजह से हो रही है, क्योंकि उन्हें कोविड हुआ है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जांच नहीं कराई, तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। और जो मौतें हुई वो सिर्फ बुखार आने से, तो कोई आंकड़ों में दर्ज नहीं हुई। पर जो वो भयावह स्थिति थी, क्या हमने किसी बड़े मीडिया संस्थान में देख पाई? शायद नहीं देख पाई।
हमें इसकी जरूरत नहीं लगती है या फिर हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश की एक बड़ी आबादी गांव में बसती है, पर हम ग्रामीण पत्रकारिता की बात करें तो हमें जो उसका कंटेंट है वो बहुत ना के बराबर देखने को मिलता है। हमें ग्रामीण क्षेत्र की आवाज बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। मुझे बेहद खुशी है कि आप जो भी जर्नलिस्ट जिनको आज ये फेलोशिप दी गई है, आपने पिछले 5-6 महीने में अच्छे आर्टिकल्स लिखे, महिलाओं के मुद्दे पे लिखे। पर अगर ये संख्या और ज्यादा बढ़े और ज्यादा लोग आगे आए तो शायद ग्रामीण क्षेत्र की जो आवाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे हैं, वो बड़े पैमाने पे हमारे सामने आ पाए। हमें पता चल पाए कि हमारे गांव में वाकई में चल क्या रहा है। ऐसा कतई नहीं है कि हमारे गांव में सिर्फ समस्याएं हैं, कई जगह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, पर रिपोर्टिंग के अभाव में वो चीजें हमें नहीं पता चल पाती हैं। कई खबरें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जो शायद हमारे बहुत काम की नहीं होती हैं, पर उसको हम देखते हैं क्योंकि उसमें टीआरपी मिलती है। रूरल जर्नलिज्म में शायद उतनी टीआरपी नहीं है, शायद किसी भी संस्थान के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ एक गिनती के संस्थान हैं जो रूरल जर्नलिज्म को बढ़ावा देते हैं, चरखा उनमें से एक है। मुझे लगता है कि रूरल जर्नलिज्म में अभी काफी काम करने की जरूरत है, और चरखा ने जिस तरह से प्रयास किया है या जो बाकी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। रिपोर्टिंग चैलेंजिंग जब समय होता है, चाहे कोई भी आपदा का समय हो, उस समय अगर सबसे ज्यादा कोई तबका प्रभावित होता है तो वो ग्रामीण तबका प्रभावित होता है, वो वंचित तबका प्रभावित होता है, वो मजदूर तबका प्रभावित होता है। पर अफसोस की बात है कि यही वो तबका है जिसकी आवाज हम बड़े स्तर पे नहीं सुन पाते, हम बड़े स्तर पे नहीं देख पाते। पहली बार हमें पता चला देश में रहते हुए कि इतनी बड़ी संख्या है मजदूरों की जो पलायन करके दूसरे शहरों में रहती है। अगर वो आबादी सड़क पे नहीं आती, अगर वो हमारे आंखों से वो तस्वीरें नहीं गुजरती, अगर वो दृश्य हम भयावह नहीं देख पाते, तो शायद आज भी हम अनजान रहते, क्योंकि हमने गाँव में जाके कभी ये रिपोर्टिंग ही नहीं की कि एक गाँव में अगर 50 परिवार रहते हैं तो कितना कितना परिवार है, कितने परिवार के लोग हैं जो बाहर पलायन करते हैं। ये एक हम कमी देख पा रहे थे। जो ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इतना कोविड चला पूरे देश में, पर हमारा सिस्टम कितना तैयार था इससे लड़ने के लिए, हमने इस पे कोई रिपोर्टिंग नहीं की। हमने इससे पहले भी कभी इस पे बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं की। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि रिपोर्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। ग्रामीण जर्नलिज्म में काफी सारा स्कोप है। अगर हम भारत की बात करें, पिछले 10 सालों से मैं रूरल जर्नलिज्म पे काम कर रही हूँ। मैंने कई सारे मुद्दों पे काम किया है, और मैंने अपनी रिपोर्टिंग में ये महसूस किया है कि जब आप गांव में जाते हैं, जो आपको गांव में समस्याएं देखने को मिलती है ना, जब शहर का कोई जर्नलिस्ट गांव में जाता है ना, वो कहता है अरे नल से पानी नहीं आ रहा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, शौचालय में कंडे भरे हैं, मतलब उनके लिए ये सब अजूबा होता है। पर जब हम गांव में रहते हैं, हमें पता होता है कि ये उनके लिए बहुत आम और साधारण बात है। और ऐसी कई तरह की समस्याएं हैं। अगर हम गांव की बात करें, अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ, रिपोर्टिंग पे ही आई हुई हूँ कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे एक बाछड़ा समुदाय है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। काफी सारी स्टोरी मैंने कई सारे संस्थानों में पढ़ी है, पर जब मैं उनसे खुद मिली पिछले 3-4 दिनों से, मैं समझ पाई कि वाकई में कितने सारे पहलू हैं। हम किसी भी खबर को एक खबर की तरह करते हैं, उसमें कई सारे पहलू है जो छूट जाते हैं। हम किसी भी चीज की कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये एक फेलोशिप मिली आपको कुछ महीने के लिए, हमने रूरल जर्नलिज्म की, क्योंकि हमारे पास इससे एक थोड़ा सा हमें संसाधन मिल गया, एक हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिल गया। पर अगर ये फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो हम क्या रूरल जर्नलिज्म को लंबे समय तक कर पाएंगे? क्योंकि रूरल जर्नलिज्म में चैलेंज काफी सारे हैं। मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अलग अलग जगह पे ट्रेवल कर रही हूँ। नेटवर्किंग काफी सपोर्ट करता है आपको कि आप कैसे इसको काम कर पाए। पर मैं यही कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाने की जरूरत है, जिसपे काम करने की जरूरत है, और जिसपे अभी काम नहीं हो पा रहा है। मैं काफी उत्सुक हूँ, उत्साहित हूँ। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में मेरी पूरी दिली ख्वाहिश है कि मैं ऐसे महिला पत्रकारों को स्पेशली ट्रेनिंग दे पाऊँ जो जर्नलिज्म में रुचि रखते हैं, अगर रुचि नहीं भी रखते हैं पर वो अपने गांव की आवाज को बाहर लाना चाहते हैं। हमने बीते सालों में ऐसी कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेन किया है, जिन्होंने हमारे साथ लंबे समय से काम किया है। जब मैं सामुदायिक रेडियो में काम करती थी, उस समय से लेके जब मैंने गांव कनेक्शन में काम किया तब तक, ये 10 साल का हमारा सफर था। 10 साल में हमें लगता है मैंने सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को ट्रेन किया, और बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं, पर 25-30 लोग ऐसे निकल के आए जो आज इस तरह का काम कर रहे हैं।
मुझे खुशी है कि कुछ एक संख्या बढ़ी है, पर इसमें और काम करने की जरूरत है। हमें इसमें और काम करना चाहिए। और ये जो हमारे देश का विकास है, अगर उसमें हम रूरल जर्नलिज्म में रूरल जो मुद्दे हैं, जो ग्रामीण मुद्दे हैं, अगर हम उसको बृहद पैमाने पे रिपोर्टिंग करते हैं तो शायद सरकार उस पर विचार करे। अगर कोई जिला है, कोई ब्लॉक है, कोई गांव है, उस आखिरी गांव की आवाज जिले तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है, ये एक रिपोर्टर ही कर सकता है। वो जिले के अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता है, और रिपोर्टर उस आखिरी गांव तक हमारा रिपोर्टर हो, ये हमें तय करना है कि क्या ये संभव है। आज हमारे देश में, हम एक बड़े देश में रह रहे हैं, हम नहीं कहते कि हर आखिरी गांव में हमारा रिपोर्टर हो, पर एक ब्लॉक स्तर पे हम एक ऐसा रिपोर्टर तैयार कर पाए, एक ऐसा कम्युनिटी जर्नलिस्ट ट्रेन कर पाए, एक ऐसा समुदाय का साथी तैयार कर पाए जो हमें एक उस गाँव की आवाज, उस गाँव की समस्या हम तक पहुंचा पाए। कहने के लिए बहुत छोटी बात है, अभी जहाँ पे मैं रुकी हुई झाबुआ जिला है, यहाँ पे फ्लोराइड की बहुत सारी समस्या है। मैं कई सारे गाँव में घूम के आई, बहुत सारे गांव, दर्जनों गांव इससे पीड़ित है। पर क्या ये रिपोर्टिंग बड़े पैमाने पे हो पाई? क्या ये रिपोर्टिंग हम कुछ ऐसी कर पा रहे हैं जिससे सरकार इसमें सुधार ला पा रहा है? पर वही, जब हम आर्टिकल खोजते हैं किसी विशेष जिला के, तो हमें कुछ एक संख्या मिल पाती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये आपकी अच्छी कोशिश है। आज जो भी जर्नलिस्ट साथियों को सम्मानित किया गया है, आप अपने स्तर से जितना संभव हो रूरल जर्नलिज्म को प्लीज जिंदा रखें। आज जितना संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगी आपके इस काम को बढ़ाने में। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह के मौके देते हैं कि आपको काम करना चाहिए, और यही वो चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। हमें इस पे काफी काम करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू निधि जी, बहुत आपने आपने हाँ हेलो हेलो जी और अगर अब क्वेश्चन आंसर का वक्त आ गया है, अगर हमारे कोई पार्टिसिपेंट राइटर कोई सवाल अगर पूछना चाहे नीतू जी से रूरल जर्नलिज्म से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल पूछना हो? हेलो जी। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम और सबको कंग्रेचुलेशंस जिन्हें ये अवार्ड मिला, फेलोशिप मिली। और मैंने सबकी तो नहीं ली, लेकिन मैंने स्टोरी सबकी पढ़ी, थोड़ी जितनी मतलब मेरे तक आ सकी वो सारी मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा नीतू मैम से एक क्वेश्चन है कि हेलो जी जी हाँ मैम, बिहार में जैसे हर साल बाढ़ आ जाता है, हर साल। तो हालांकि मैंने एक आर्टिकल लिखा भी था कि बिहार में जब हर साल बाढ़ आता है तो लोग राहत पैकेज तो पहुंचा देते हैं, उसमें खाना, चूड़ा, सत्तू, जो कुछ भी होता है, लेकिन वहां पर महिलाएं भी होती हैं जिनको पीरियड्स हो रहा होता है, या फिर वैसी महिलाएं भी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, या जिनका डिलीवरी का डेट पास आ रहा रहता है। तो अभी कुछ दिन पहले अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फोटो देखी थी, उसमें एक बच्ची छोटी सी थी और वो अपने सर पे खाना का थाली जिसमें खाना रखा था वो ले करके जा रही थी। तो ये दृश्य होता है। तो मेरा मानना था कि अगर हम लोग ये लिखें कि जैसे बाढ़ में महिलाओं को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, अगर उस एंगल से भी अगर हम लोग बाढ़ को देखें और वुमेन से जोड़ करके लिखेंगे और उनके स्वास्थ्य से जोड़ करके लिखेंगे, तो ये एक अच्छा आर्टिकल होगा। और खासकर ये अच्छा तब होगा जब इस आर्टिकल से उन महिलाओं को मदद मिले, क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरपुर से हूँ और मुझे पता है कि हर साल बाढ़ आना तय है बिहार में। तो इस तरीके की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपको लिखना चाहिए इस पे। और
अगर आप लिखेंगे, हो सकता है जो वहाँ पे स्वयंसेवी जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके नजर में अभी ये बात ना पहुंची हो कि वो, वैसे कई सारी संस्थाएं इसमें मदद करती हैं। मैं बिहार में ऐसे कई सारी संस्थाओं को जानती हूँ। मैंने बीते टाइम उनसे बात भी की है कि उन्हें पता है, उन्होंने बताया कि कोई भी आपदा आती है, खासकर अगर हम पीरियड की बात करें, ये तो सबसे आखिरी कड़ी महिलाओं की मानी जाती है और इस पे कभी जोर नहीं दिया जाता है, इस पे कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो वो काम कर रही, पर अगर आप इस पे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मुझे लगता है आपको लिखना भी चाहिए। और कई और पहलुओं को ध्यान में रख के भी अगर आप लिखें कि कैसे बाढ़ आती है उस टाइम ही रिपोर्टिंग होती है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब भी कोई आपदा आती है उस समय तो हम कुछ रिपोर्टिंग पढ़ लेते हैं, पर बाढ़ के बाद की क्या स्थिति रही है ना, बाढ़ के बाद उनपे क्या असर पड़ा। अभी अगर हम पिछले 2 साल कोविड की बात करें तो लगातार हमने यही रिपोर्टिंग की है कि लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों का रोजगार छूना है। पर क्या हमने इस पे और डिटेल में रिपोर्टिंग की है कि उसका असर एक आम गृहिणी महिला पे क्या पड़ा है, उसके खान पान पे क्या पड़ा है, जो सबसे पहले घर में खाना बनाती है और सबसे लास्ट में खाती है, क्या उसके खाने में आज क्या सब्जी पहुंच पा रही बची हुई, या फिर सिर्फ वो चटनी रोटी अचार रोटी खा के अपना गुजारा कर रही है। ये ह्यूमन एंगल स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, इस पे जरूर लिखना चाहिए आपको, है ना। जी मैम, थैंक यू। मैम मेरा भी क्वेश्चन था कि आपने जो बताया कि महिलाओं के ऊपर और उनकी समस्याओं पर ग्रामीण रूरल में जो चीजें वो झेल रही हैं, सह रही हैं, उनके ऊपर यदि हम लिखते हैं तो वो ऊपरी लेवल तक उनकी पहुंचती है और समाधान उनका कहीं ना कहीं हम करवाने में एक भागीदारी अपनी दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है मैम कि जो मैंने अनुभव किया आर्टिकल लिखने के दौरान कि महिलाओं के पास या बालिकाओं के पास जब हम पहुंचते हैं और उनसे जब उनकी समस्याओं के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पूछते हैं तो वो अच्छे से खुलकर बता नहीं पाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि हम पूछने में हमारा तरीका ठीक नहीं हो या कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं कोई गैप हो, ये भी हो सकता है। बट एक बार में अगर हम जाके उनसे बात करते हैं तो वो नहीं बता पाती हैं। 2-3 बार उनके पास बारी बारी जाएंगे, बातचीत करेंगे, तभी वो अपनी चीजों को बताती हैं। उसमें भी बहुत कम खुलकर बताने की स्थिति होती है। एक तो ये समस्या आती है। तो कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, मतलब इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कैसे किया जाए कि अधिक से अधिक वो अपनी समस्याओं को अच्छे से बता पाए, ताकि कम समय में ज्यादा लोगों तक और एक प्रभावी चीज निकल के आए। जो चीज हम आगे जाना चाहते हैं, जो चीज हम आगे उसको बताना चाहते हैं लोगों को, या उस मुद्दे को खोलना चाहते हैं, तो वो खुल के सामने आए। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का या समुदाय के लोगों का, पुरुष वर्ग का डर और दबाव और झिझक शर्म के कारण भी वो नहीं बता पाती है। तो कहीं ना कहीं हमें उन महिलाओं के साथ एक अवेयरनेस वाला पार्ट और ये भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए कि शुरुआत में उन महिलाओं की झिझक शर्म तोड़ने के लिए हम फर्स्ट में अवेयरनेस का पार्ट या ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो इस टाइप का हम करें तो और भी अच्छा। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी आपसे। मैं सच कहूँ आपको तो मेरे 10 साल के करियर में ये कभी चैलेंज नहीं आया। मतलब ऐसा कभी चैलेंजिंग फेस मुझे कभी नहीं सामना करना पड़ा कि जो स्टोरी मैं करना चाहूँ उसमें बातचीत का गैप आए, लोग मुझसे बात ना करें, मेरा काफी टाइम जाए, ये कभी नहीं आया। हाँ, उसका जो मैंने अपने काम के अनुभव से सीखा 1-2 चीजें, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेप सर्वाइवर का इंटरव्यू किया, मैंने बहुत लंबी लंबी सीरीज की है। अगर रेप की घटना उनके साथ आज हुई है तो 3-4 साल बाद मैंने जाके उनकी वीडियो स्टोरी की है। तो ये इसके 2-3 चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तब आप खुद को एक जर्नलिस्ट ना समझे। जर्नलिस्टों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम एक पत्रकार हैं। मैंने अपने नेचर में, अपने स्वभाव में कभी खुद को एक पत्रकार रिप्रेजेंट नहीं किया कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं ऐसा लिखती हूँ, कुछ नहीं। मैं गाँव में जाके एक आम और साधारण लड़की की तरह उनसे मिलती हूँ, क्योंकि गाँव के लोग आपसे तभी बात करेंगे जब आप उनसे उनके लहजे में उनकी बात करेंगे। और जाते जाते अगर आप सीधे बात करेंगे ना, भाई बताओ आपकी समस्या क्या है, कोई आपको क्यों बताएगा। आप जाइए उनसे हालचाल लीजिए थोड़ा। मैं तो एक अलग जिले में, मतलब एक अलग स्टेट में आई हूँ, मैं यूपी की रहने वाली हूँ और अभी मैं एमपी में हूँ। और एमपी में मेरा अपना कोई अपना व्यक्तिगत ना तो मित्र है ना कोई मेरी रिश्तेदारी है,
सारे ट्रेंड्स मेरे सोशल मीडिया के हैं और मैं पिछले 7 जुलाई को आई थी, अभी शायद मैं 30 जुलाई तक यहाँ पे रहूंगी और मुझे कोई चैलेंज नहीं आ रहा है। मैं जिस समुदाय की, जिस तबके की स्टोरी करना चाह रही हूँ मैं कर पा रही हूँ। तो बस यही कि आपको उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली बात करना है, दोस्ती करना है। टाइम टेकिंग है रूरल जर्नलिज्म, हमेशा से टाइम टेकिंग रही है, समय लगता है। अगर आप सोच के जाएं कि सुबह जाएंगे शाम तक हम आ जाएंगे 2-4 स्टोरी करके, तो नहीं। हम जब नौकरी करते थे तो हमारे ऊपर ये प्रेशर रहता था कभी कभी कि हमें दिन की 2-3 स्टोरी देनी है। अभी मेरे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, तो मैं थोड़ा फ्री हूँ, खुल के पत्रकारिता कर पा रही हूँ, मन की पत्रकारिता कर पा रही हूँ। तो आपसे बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा दोस्ती करें, उनसे जाते जाते डायरेक्ट सवाल ना पूछें कि आपकी क्या समस्या है। आप उनको बताएं कि हम लिखना चाहते हैं, आप तो समाज सेवी हैं, है ना, हम काम करते हैं, हम आपके बारे में लिखना चाहते हैं, क्या पढ़ाई चल रही, थोड़ा उनकी हालचाल लीजिए, उनके बारे में, आपके शौक क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है। जब आप आधे घंटे 15 मिनट इस तरह की बात कर लेंगे ना, तो आपके साथ वो काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर 15-20 मिनट, आधे घंटे आपका टाइम लॉस तो है ये, लेकिन ये एक पहली प्रक्रिया है जब आप उनके दिल में, उनके घर में, उनके उनके साथ आप एक अच्छी जगह बना पाते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। कुछ झूठी मूठी जरूरत पड़े तो कहानियां भी शेयर कर सकते हैं कि अरे मैं तो वहां से आई थी, वहां पे भी ऐसा हो रहा था, ऐसी दिक्कतें थी, अच्छा ठीक है, फिर पढ़ाई में बहुत लॉस होगा, मुझे तो बड़ा दुख होता। मतलब थोड़ा सा उनके तरह से आप बात करें जो वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि कई बार रिपोर्टर क्या जाता है, वो सोच के जाता है कि भाई हमें इस समस्या पे बात करनी है। अगर मैंने सोचा है कि हम इस गांव में जाएंगे, यहाँ पे शराब की बहुत प्रॉब्लम, हम शराब पे बात करेंगे, पर वहां की महिलाएं उस पर बात ही नहीं करना चाहती हैं। उनकी तो प्रॉब्लम ये है कि उनके पति शराब पी के उनको मारते हैं, तो हमें हिंसा पे बात करनी है ना कि हमें शराब पे। शराब एक पहलू है, उसको हम लास्ट में स्टोरी में मेंशन करेंगे, पर हम ये लिखेंगे कि यहाँ के महिलाओं पे हिंसा ज्यादा होती है, वो बात करना चाहते हैं। तो हम अगर पहले से माइंड मेकअप करके जाए कि हमें ये स्टोरी करनी है, हमें यही निकाल के लाना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है जर्नलिज्म में, नेटवर्किंग बिल्ड करना बहुत जरूरी है, टाइम टेकिंग है, आपको रिश्ते बनाने पड़ेंगे, आपको सहज होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, उनके हिसाब से बात करनी पड़ेगी। अगर वो जमीन पे बैठे हैं, आप जमीन पे बैठिए। आप जाते ही जाते कैमरा पकड़ लेंगे तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, आप जाते जाते कॉपी पेन निकाल लेंगे, कोई आपसे बात नहीं करेगा। आपको 15-20 मिनट तक उनको सुनना है, आपको कम बोलना है, उनको सुनना है। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अभी जी आपका एक मैम। भरोसा बन जाएगा, है ना। जी मैम। और एक चीज और है कि मैंने अधिकतर अभी तक मतलब घुमंतु जो समुदाय है, घुमंतु परिवार के जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समुदाय ऐसे हैं जिनके ऊपर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनकी समस्याएं भी बहुत सारी हैं। लेकिन कि जैसे मान लीजिए कि आज उनके साथ जाके हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन या 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद में जाएंगे तो वो लोग वहां मिलते ही नहीं है, वो कहीं और जाते हैं। तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत आई कि और आती है कि वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, फिर जब वो वापस रिटर्न होके आते हैं तो फिर उनसे फिर बात करनी पड़ती है, तो एक वो गैप उसमें हो जाता है। आप एक चीज ऐसा कर सकते हैं कि जब इस तरह की आपको चैलेंजिंग स्टोरी करनी हो, कि आपको पता है कि घुमंतु परिवार यहाँ पे 2 दिन ही रहेगा, 2 दिन बाद आगे चले जाएंगे, तो आपको अपने सारे काम छोड़ के 2 दिन उनके साथ समय लेना है ना। फिर आप अपनी कहानी में जिक्र भी कर सकते हैं कि 2 दिन में हमारी इतनी ही बातचीत हो पाई, पर वो समुदाय आगे चला गया, हमारी बातचीत नहीं हो पाई। मैं एक चीज हर किसी जर्नलिस्ट से कहना चाहती हूँ, मैं ये अपने अनुभव से कह रही हूँ, जो मैंने सीखा है। मैं आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आप सबको डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अगर कोई जर्नलिस्ट ये कहता है कि वो ये स्टोरी नहीं कर पाया, उसको ये चैलेंज और ये परेशानी आई, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसकी कोशिश करने में थोड़ी सी कमी रह गई, है ना। जब आप लंबे समय तक काम करते हैं तो आप कर पाते, कई बार स्टोरी नहीं हो पाती, जरूरी नहीं हर बार स्टोरी हो जाए, तो उस पर निराश ना हो, पर अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्टोरी हो जाएगी। मैं जिस समुदाय की स्टोरी करने यहाँ पे आई थी, बाछड़ा समुदाय की, मुझे ऐसा पता चला कि उनके घरों में घुस के बात करना मुश्किल है, आप नहीं कर सकते हैं बात। पर जो चीज मुझे चैलेंजिंग लगती है, मेरा वो करने का बहुत मन करता है। मैं उस समुदाय में घुस के बात करना चाहती थी, उन लड़कियों से मिलना चाहती थी। मैं उनके अंदर गई, मैंने घुस के बात की, मैंने उनका वीडियो शूट किया और इतने भरोसे के साथ वापस लौटी कि मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था ये सब अचानक कैसे हो गया, है ना। तो ये पता नहीं कैसे हो जाता है, आप करेंगे तो हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको सहज बनना है। और ये जर्नलिस्ट वाला ना कि आपको कुछ आता नहीं, मैं हमेशा फील्ड में यही सोच के जाती हूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है ना। जब आपको लगेगा कि आपको कुछ आता है तो फिर मुश्किल होगा। आप जो वो बात बता रहे हैं आपको बहुत ध्यान से सुनना है,
अगर वो कह रहे अच्छा ये मेरा मजबूरी है कि हम इस पैसे में आ रहे हैं, अच्छा ये मजबूरी, क्या मजबूरी, आप उनसे ही कई तरह के सवाल निकालें और आप कम बोले वो ज्यादा बोले। और वीडियो स्टोरी तब तक शूट ना करें जब तक कि वो आपके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल ना हो जाए। रिपोर्टिंग के टाइम शुरुआत में मेरी भी ये गलती रहती थी कि मैं सबसे पहले जाके, मुझे लगता था ये बोल रही है पता नहीं दोबारा बोलेगी नहीं, तो मैं वीडियो शूट करने लगती थी। उसमें दिक्कत क्या आती थी, लोग मना कर देते थे। पर पहले आप लिखें, लिखना बहुत जरूरी है, बिना डायरी पेन के मत जाएं, बेसिक पॉइंट्स जरूर नोट करें। और वीडियो तब तक शूट ना करें जब तक कि आपका उनके साथ एक रिश्ता ना बन जाए, है ना। टाइम लगेगा थोड़ा आपको, लेकिन हो जाएगा काम। हाँ, मुश्किल नहीं है ज्यादा। और जो समुदाय, जो रिपोर्टिंग आपको लगता है कि चैलेंजिंग है, वो समुदाय कहीं और चला जाता है, आप उससे नहीं मिल पाते हैं, तो जब तक वो समुदाय है, आपको पता है कि ये लोग यहाँ पे 4 दिन रुकेंगे फिर नहीं रुकेंगे, तो आपको 4 दिन फिर अगर उन्हीं पे स्टोरी करनी तो आपको अपना फुल टाइम देना पड़ेगा उनके साथ, है ना। आप अपने दूसरे काम को रोकिए, तब आप उसको कर पाएंगे, है ना। फिर अगर आपको लगता है कि वो बाहर चले जाएंगे फिर हम कैसे बात करेंगे, तो ये मतलब ये ऐसा नहीं ना करें आप। उनसे बात करें, उन उस टाइम पे ही बात करें जब वो वहां पे मौजूद है। और किसी का कोई सवाल? जी, राजेश, यू आर ऑन म्यूट। मैम, अभी जो आप बोल रहे थे कि जब हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं या हम जब उनके बीच में एक कांटेक्ट स्थापित करते हैं, उस दौरान एक चीज जो मैंने महसूस करी कि ना, कभी कभी ये होता है कि जिनके साथ आप बैठ रहे हो, मिल रहे हो लगातार, वो एक प्रकार का ना एक्सपेक्टेशन उनका आपके टुवर्ड्स आने लगता है। तो उस एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कभी कभी तो होता है कि आपने लिखा और एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत रिएक्ट किया और चीजें सॉल्व हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लिखा और एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम लगा दिया, या बात नहीं पहुंची, या बात घूमती रह गई कहीं। तो उस सिचुएशन में हम उस परिस्थिति को कैसे देखें या उसको कैसे डील करें? ये तो मेरे मन में हमेशा से इस बात को लेकर निराशा रही है। जब मैं रेप सर्वाइवर की स्टोरी करती हूँ, कोई भी रेप सर्वाइवर या उसका परिवार बहुत भरोसे के साथ मुझे अपनी सारी फीलिंग, सारी प्रॉब्लम, सब कुछ बताते हैं। पर जब मैं स्टोरी फाइल करती हूँ, वो विभाग तक पहुंच जाती है, जिले स्तर पे पहुंच जाती है, कुछ होता नहीं है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे स्टोरी पब्लिश होने के बाद भी डायरेक्टली वहाँ के ऑफिसर से बात करती रहती हूँ, और इसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। और वो परिवार लगातार मुझे कांटेक्ट करता है ना कि मैडम आप कह रही थी कि जो मुआवजा राशि है वो मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिली। मैडम आप कह रही थी केस में ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। बहुत मुश्किल होता है, बहुत गुस्सा आती है, खुद से कोफ्त होती है, और फिर मन करता है कि शायद हमने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम किया। हमें एक स्टोरी फाइल करनी थी, एक अच्छी स्टोरी मिल गई, तो हमने फाइल कर दी। पर ऐसी हर बार ये जरूरी नहीं है कि हमारी स्टोरी का इम्पैक्ट हो, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको उस कम्युनिटी को इस तरह से, अब मैं जब भी कहानी करती हूँ मैं जरूर सबको ये बता देती हूँ कि हमारी एक कोशिश यही है कि हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएं, जिले तक पहुंचाएं, आपके प्रशासनिक जो अधिकारी है उन तक पहुंचाएं। कोशिश रहती है कि हम उसमें कुछ कर पाए, पर अगर कुछ नहीं होता है तो अगले आदमी को ये ना लगे, पर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। ये थोड़ा चैलेंजिंग है, पर आपको अपने स्तर से जितना आप मेहनत कर सकते हैं करें, लगातार स्टोरी का फॉलोअप करें। मुश्किल होता है जब आपके पास कई सारी स्टोरी रहती है, आपको सब स्टोरी का आप लगातार फॉलोअप कर पाए, ऐसा नहीं है। मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि हम पिछले 2 सालों में हमने करीब 10-12 रेप सर्वाइवर की स्टोरी की, और हम 2 या 3 की हेल्प कर पाए, बाकी किसी की हेल्प नहीं कर पाए। और वो लोग अभी भी हम मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उनको अभी भी भरोसा है कि मैं चाहूंगी तो ये काम हो जाएगा। अभी कोविड चल रहा है इसलिए उनका काम मैं नहीं करा पा रही हूँ। मैं वहाँ के अधिकारियों से बात करती हूँ, जब मैं ट्वीट वगैरह कर देती हूँ किसी दिन, कभी कभी वहाँ के लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेते हैं, वहाँ के अधिकारी, कि मैडम हम इस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, मैडम इसको ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उसका हल नहीं निकल पाता है। मुश्किल है ये परिस्थितियां, लेकिन आपको ये उनको बताना है जरूर अपनी रिपोर्टिंग के टाइम पे। आप ये कतई ना कहें कि हम बिल्कुल इसका हल निकाल देंगे, हमें ये ध्यान रखना है। हमें ये कहना है कि हम एक माध्यम है आपकी बात को आगे तक पहुंचाने का। आप जो काम अभी, जो आपकी समस्या, अगर किसी गांव में मान लीजिए पानी की समस्या है, अभी तक हो सकता है आपके जिले के जिलाधिकारी को ये ना पता हो कि आपके जिले में पानी की समस्या है, तो ये बात हम आपके जिलाधिकारी तक पहुंचा देंगे।
हल होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पर आपकी समस्या एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो एक स्टेप आगे, क्योंकि जब हम झूठा आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो एक रिपोर्टर का काम सिर्फ उसकी बात को आगे पहुंचाना है, तो हम एक माध्यम है उसकी बात को आगे पहुंचाने का। मुश्किल है कि मतलब आप उन्हीं के बीच में काम करते हैं, रोज काम करते हैं, पर उनको इतना ज्यादा अपने ऊपर निर्भर ना होने दें कि अगर उनका कोई काम नहीं हो पाता है तो आपको निराशा लगे, आपके संबंध खराब हो। हम लंबे समय तक लोगों से बात करते रहते हैं सिर्फ ये कह के कि हमने आपकी बात आगे तक पहुंचाई है। हम उन अधिकारियों से कांटेक्ट में रहते हैं जो उस केस को देख रहे होते हैं कि सर थोड़ा देख लीजिए इसमें क्या कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे कांटेक्ट आप बनाइए, जैसे कि कोई रेप सर्वाइवर्स है, अगर उसको एडवोकेट की जरूरत है, उसके पास पैसा नहीं है, अगर कुछ संस्थाएं हैं जो उनको मदद कर पा रही हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनको फ्री में वकील दिला दीजिए कि भाई आपको ये एडवोकेट मिल गया। जिले स्तर पे अगर उनका कोई काम रुकता है तो आप वहाँ के जो अधिकारी है उनसे थोड़ा संपर्क रखें कि आप उनसे कनेक्ट करा दें। पर हर बार असर होगा ये थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, है ना। तो आप उनको इतना आश्वासन ना दें, उनको इतना भरोसे में ना रखें। मुश्किल है समझाना लोगों को थोड़ा, पर आपका काम सिर्फ माध्यम है, आप एक माध्यम है कि आप एक एक बात को एक स्टेप आगे तक पहुंचा पा रहे हैं। थैंक यू मैम। सूर्यकांत, शायद आप पूछना चाह रहे थे कुछ। Shams, Yes, sir. Here. सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है सर। अभी can you hear me? जी सर। Now? जी सर। सुनाई दे रहा है? जी सर। Okay. Yeah. Okay. See, this what Neetu said is very true, and the question asked by Rajesh was also very relevant. It's a matter of, I come from a background of research, survey research, social research. Same problem you face when you do research on, say, nutrition or pregnancy or health in a rural area. Everybody thinks, now problem solved ho jayega. Problem is, it's a micro level, small numbers that you collect in research, as a journalist does. Journalism also, 5-6 case study. I mean, Neetu goes to a village, she goes to 5 villages, 10 villages, she will meet many cases. From there, it will come to a macro level thing. And the ultimate thing is the macro level. I mean, I'm not even talking about policy level, at administration level, district level, state level. Some action is taken or not. The issue is not about an individual, that family. That is, well, not the role of a journalist or the role of a researcher. It is a role of activists, local grassroots activists. Always there is a dilemma whenever we go to field. I mean, the person you talk to, whether for printing it so that 1 million people, 10 lakh log padhe usko. Issue is now, are you going to solve that particular person's problem, or are you going to take that case and so that 1 lakh people, right up to authority, functionaries, officials, get to know it. So you must be very clear. It's an ethical issue, and you have to be extremely brutal and professional about handling this. So in research, we have had cases like we are talking about nutrition, pregnant women nutrition and things like that. People, the interviewers get carried away. वो लोग जाके counsel उनको advice देने शुरू कर देता. So you have lost the data. The data is gone. Idea is you collect data from 100 people, 200 people from 5 states on so many districts, and from there you come to a conclusive direction, and so that policy can be made. If you go, one interviewer goes and gives advice to 10 households, it's not going to solve any problem. I'm sure, Neetu, you have faced this issue, and what you said is absolutely true. And everybody, feels doing good, ethical issue, moral issue. But point is, you have a certain task to do. Or you go and do activism, get hundreds of people and go and talk to people and solve the problem, take it up to the courts, do whatever. There are two different things you have to keep in mind. And coming from my own experience, I faced this all my life, from pure research. And this is another extension, a different kind of research, which is, you're bringing the same thing, the story, to the world. Our research that we do goes to Ministry of Health and nutrition, or Ministry of this and Ministry of that. That's the same thing. Population planning, and how the population planning and health and everything is planned based on research.
the research gets contaminated, tampered, you're talking about, I mean, huge wrong decisions, billions of rupees gone here and there in for wrong kind of things. So keep that in mind. My last, just wanted to say this, and what Neetu said it very correctly. That perfect. थैंक यू सर, बहुत आपने अपना एक्सपीरियंस बताया सर। और नीतू जी का और किसी का कोई सवाल अगर है तो करना चाहे, या फिर हम आगे बढ़े। हेलो। हाँ सौम्या, आप पूछना चाहती हैं? यस सर। बहुत सौम्या प्लीज एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि अब वक्त भी नहीं है, तो प्लीज शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिए। और सौम्या के बाद हम यूसुफ का सवाल लेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड द सेरेमनी। जी सौम्या, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिएगा अपना। यस सर। नीतू मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि पिछले साल यहाँ का जो राशन कार्ड का जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। तो जैसा कि आपने बताया कि वहां पर जाने के बाद आप सीधे किसी से क्वेश्चन करने से बेटर है कि पहले आप उनसे फ्रेंडली हो। तो वहां पर एक महिला थी जो नीचे बैठी थी जमीन पे, तो हम भी वहां उनके साथ जमीन पर ही बैठे। जैसे कि आप बताइए अभी कि उन लोगों को एक उम्मीद हो जाता है कि अगर ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और अगर वो उसको लिखेंगे तो इसका कोई असर होगा और उनका जो राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है ये बनेगा। तो मेन दिक्कत यहाँ पर ये हो जाता है कि पहले उनसे बात तो हो गई, लेकिन अगर फिर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर वो दूसरे टॉपिक पर अगर उनसे बात करने का कोशिश हो तो वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब कि वो लोग कहते हैं कि पहले बार का जो आपका क्वेश्चन था उसका कुछ असर नहीं हुआ, तो अभी हम आपको क्यों बताएं। इस तरीके की थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसको कैसे डील किया जाए? सौम्या, अभी जैसा सर ने भी कहा कि हम जब भी समुदाय के लिए लिखते हैं तो हमारा काम सिर्फ उस बात को, उस मुद्दे को उठाना है कि हमने एक ऐसी समस्या, एक ऐसा मुद्दा है जो उठाया है, जिसपे जो अभी तक शायद नहीं उठाया गया था, या उठाया गया था तो बहुत छोटे स्तर पर उठाया गया था। आप उसको एक उन्हीं के शब्दों में आप उठा रहे हैं, उन्हीं के समुदाय से उठा रहे हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि पहले तो वही, जैसा सर ने अभी अपने अनुभव से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें वहां पे ये कहना, मतलब कि आप बदलाव नहीं हुआ, आपने राशन कार्ड हमारा नहीं बना, तो ये बात आपको शुरुआत से ही अपनी रिपोर्टिंग में या अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने में ध्यान रखना है कि आप उनका सारा काम करवाने नहीं आए हो। आपका सिर्फ काम है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको आप एक स्टेप आगे ले जा रहे हो, आप सरकार तक उनकी बात पहुंचा रहे हो। एक बार राशन कार्ड नहीं बना पर आपने उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई, पर दोबारा जब आप उनसे बात करने जाते हो तो आप दूसरे मुद्दे पे बात करते हो, तो भी आप उनको ऐसे ही डील करेंगे कि हम आपकी बात को सिर्फ आगे पहुंचा रहे हैं। क्योंकि फिर वही बात ना, सरकार तो हर चीज पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, समस्याएं तो बहुत सारी है ना, कि हमारे पास बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं एनीमिक हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं। पर हमारे लिखने से वो समाधान हो जाएगा, सरकार उस पर विचार करेगी, ऐसा तो कह पाना हाल फिलहाल में तो बहुत मुश्किल है। पर आप उनकी आवाज को, एक मुद्दे को आगे उठा रहे हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर हम बात करें, आप जिस जिले में भी रहती हैं वहां पे अगर राशन समस्या मिलने में दिक्कत आ रही है, वही मैं फिर बात दोहराऊंगी कि जिले के अधिकारियों को हो सकता है ना पता हो, ब्लॉक के अधिकारियों को हो सकता है ना पता हो। आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने स्तर से, जो वहाँ का ग्राम प्रधान है, जो वहाँ का ब्लॉक प्रमुख है, जो वहाँ के एडीओ है, जो पंचायती राज अधिकारी है, आप उनसे बात कर ले कि सर इनकी ये प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व हो सकती है। आपको जरूरत लगे तो आप उनके सामने बैठ के उस महिला के सामने ही फोन कर सकते हैं कि भाई ये समस्या है इनकी, सर कैसे ठीक हो सकती है। तो आपका फेथ उस पर बन जाएगा थोड़ा सा, है ना, कि भाई ये हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। पर आप उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, ये तो मुश्किल होगा, है ना। तो आप कभी भी अपने दिमाग में ये कह के ना चले कि मुझे उसकी समस्या का समाधान करना है। आपको हमेशा से ये लेके चलना है कि आप उनकी जो प्रॉब्लम्स है आप उसको एक स्टेप आगे उठा रहे हो, आप सिर्फ उस एक माध्यम का काम कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है वहां पे जाके,
आप सिर्फ लिखने के माध्यम से उनकी बात आगे पहुंचा रहे हो। ये एक जर्नलिस्ट को हमेशा से ध्यान रखना है ना। हम तो अलग अलग स्टेट में रिपोर्टिंग करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कई लोग मुझे ऐसे अपने कन्वेंस से घुमाने ले जाते हैं कि मैडम हमने ये काम किया, मैडम हमने ये काम किया। कुछ एनजीओ के लोग होते हैं, कुछ गवर्नमेंट लोग होते हैं, पर मैं हर स्टोरी पब्लिश करूंगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं ऐसा उनसे कोई कमिटमेंट करके नहीं जाती हूँ कि आप मुझे अगर लेके जा रहे हैं 50 किलोमीटर बाइक से तो मैं वहां पे स्टोरी करूंगी। अगर मेरा वहां पे मन नहीं भरा तो मैं स्टोरी फाइल नहीं करती हूँ। तो ये आपको डिसीजन खुद से लेना है कि आपको कौन सी स्टोरी करनी है, नहीं करनी है ना। तो आपको बस एक चेंज, आप उस स्टोरी का बदलाव करेंगे ये दिमाग में नहीं रखना है, आप उस बात को आगे पहुंचाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। यस मैम। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूसुफ, आप शायद कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। यूसुफ said something. सर मेरा बेसिकली ये सवाल था मैम से कि जो जर्नलिस्ट जो फील्ड में काम करते हैं वो तो खैर अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में मतलब जो आम लोग भी हैं वो भी उस चीज़ का फायदा उठाते हैं कहीं ना कहीं, सिर्फ एक साइड का, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनका एक पक्ष वो बयान करते हैं, तो वो उस चीज़ का, जर्नलिज्म का कहीं ना कहीं नाजायज फायदा उठाते हैं। तो उस सूरत में हम जो राइटर्स हैं या जो सही तौर पे जर्नलिस्ट है उनको क्या किस तरीके के इकदाम उठाने चाहिए, किस तरीके की कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को वो सही तरीके से पेश कर सकें? यूसुफ, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल पूछा है, और ये हर एक रिपोर्टिंग में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आप जब भी रिपोर्टिंग करें, पहली बात तो यही कि जर्नलिस्ट के दिमाग में पहले से कोई पूर्वाग्रह ना हो। आप पहले से सोचे मत कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, आपको नहीं सोचना है। आपको उस वक्त एक निष्पक्ष होके काम लिखना है, निष्पक्ष होके आप एक जर्नलिस्ट हैं। आपको हर एक पहलू पे ध्यान देना है, आपको हर एक पक्ष से बात करना है। आप अगर कभी मेरी स्टोरी पढ़ेंगे, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको ये जरूर नजर आएगा कि मैं कभी भी किसी एक पक्ष से बात नहीं करती। लोग क्या लिखते हैं, लोग क्या कहते हैं, हम उस पर सुधार नहीं कर सकते, हमें उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, पर हम क्या बेहतर अपनी रिपोर्टिंग में कर सकते हैं, हमें इस पे गौर करना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी स्टोरी फाइल करें, आप कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति से या एक समुदाय से या एक पक्ष से बात ना करें। आपकी रिपोर्टिंग में वो सारे पहलू आने चाहिए जो आपकी रिपोर्ट में जरूरी है। अगर मैं आपकी स्टोरी पढ़ रही हूँ तो मुझे ये नहीं दिमाग में होना चाहिए कि यार जिस व्यक्ति की इन्होंने स्टोरी लिखी है, अब वो क्या कहते हैं, उसकी उम्र कितनी है, उसका गांव का क्या नाम है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, कितने लोग इस समस्या से प्रभावित हैं, जिस समस्या पे हम बात कर रहे हैं सरकार का इस पे क्या नियम है, सरकार की जिले में क्या योजना चलती है, जिम्मेदार अधिकारी इस योजना के बारे में क्या कह रहा है, जो इस पे कानून क्या कहता है। मतलब आपकी स्टोरी में मुझे वो हर एक पहलू मिल जाए, फिर मुझे अगर आप हमें दे पाए एक मतलब एक जनरली मैं बात कर रही हूँ कि आप अगर उसमें एक नेशनल डेटा दे पाए, तो आपकी स्टोरी में वो सारे पहलू होने चाहिए जो एक अच्छी पुख्ता रिपोर्ट में, मुकम्मल रिपोर्ट में दिखने चाहिए, है ना। बाकी जर्नलिस्ट तो मैं देखती हूँ कि लोग एक पक्ष से बात कर ली, किसी से बात नहीं की, दो पक्षों से बात कर ली, पर आप उनको सोचेंगे कि आप उसको सुधार देंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। पर आप अपनी रिपोर्ट में बेहतर करें। आप कभी भी ये कमी ना रखें कि आपसे कोई अधिकारी ये कह दे, पंचायती राज अधिकारी, कि भाई आपने हमसे तो बात ही नहीं की, आपने हमारा तो पक्ष लिया ही नहीं, है ना। अगर वो बात प्रदेश स्तर तक पहुंचती है तो प्रदेश का कोई अधिकारी ये ना कहे, कि जिले का कोई अधिकारी ना कहे, या मतलब कि आपने हमारा पक्ष क्यों नहीं लिया। आप अपनी स्टोरी में पूरी कोशिश करें, भले स्टोरी आपकी एक दिन देर से फाइल हो, पर आपकी स्टोरी में सारे पक्ष आने चाहिए। आप जिस मुद्दे पे लिख रहे हैं उस मुद्दे की डिटेल होनी चाहिए, आप जिस लोगों के बारे में लिख रहे हैं उनका बैकग्राउंड होना चाहिए, उनके क्या प्रॉब्लम्स है। आप जो उससे संबंधित अधिकारी है उनसे बात करें, जो कानून है, जो उसका नेशनल डेटा है, सारी चीज आप रिसर्च करके लिखें। आपकी स्टोरी में सारे बिंदु जरूर आने चाहिए। बिना आधी अधूरी खबर कभी मत चलाएं। कोई कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी प्रेशर हो, आप कभी ऐसी स्टोरी फाइल ना करें। वो एक बहुत सतही स्टोरी होती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। I want to just add, Shams? Yes, sir. Ji, sir. What Neetu is saying, I mean, she is saying it as a journalist, and she is saying exactly what we have taught, we have learned in research. See, in research, when you go to a village and try to address some issue, could be gender, could be adolescent girls, could be nutrition, family planning, whatever. So issue is, particularly in a quality research, not in a large scale sample survey where the all India sample size would be 5 lakh ka hota hai, wo sab chhodiye. I'm going just to understand deeper issues.
that you should always in research, what the technique that we use in ethnography or anything is called triangulation. Triangulation, I think what Neetu just said is nothing but triangulation. I mean, you have your primary target group, let's say mothers of children or pregnant women. Pregnant women को तो interview आप करेंगे, बात करेंगे, even for journalistic purposes. तो उसका mother in law भी करना है, father in law करना है, husband भी करना है, community leader सरपंच को भी करना है, आंगनवाड़ी वर्कर को भी करना है, DDO block development officer, and you have to, for getting a full picture of one village, and उसका बाद ऐसा 6, 7, 8, 10 विलेज करके तभी कहानी होगा. कंक्लूजन जो आप रिकमेंड करेंगे रिपोर्ट में टू द स्टेट गवर्नमेंट और योर क्लाइंट विल बी बेस्ड ऑन triangulation. Similarly, in a smaller scale, it is true for journalism. Exactly, as she said, no, एक प्राइमरी सब्जेक्ट को लेके तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे ना. You will talk to officials, functionaries, other family members, men, women, and so on and so forth. So basically it's called triangulation. The method is called, technique is called triangulation. So that you are confident and you can say which sources everywhere. So no party can question your authenticity. You have done your job honestly. That's the whole thing. Thank you, carry sir. on. Thank you. Thank you, sir. बहुत अच्छा. मेरे ख्याल से आज आपके एक्सपीरियंस से आपने जो शेयर किया, हमारे राइटर को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. थैंक यू नीतू जी, आपने भी बहुत अपना वक्त निकाल के हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. हमारे राइटर को बहुत कुछ सीखने को उनसे भी मिला होगा. और अब हमारे इस अवार्ड सेरेमनी का अंतिम पड़ाव आ चुका है और मैं अपने कोलीग प्रशांत आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए. प्रशांत जी. Thank you, Sam sir. A very good evening to all of you. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First of all, I would like to thank Mario sir, who I believe is guiding us from above as we move ahead to achieve his dream of making Charkha a sustainable, successful organization in the field of development communication. Malvina ma'am, your presence today helped us fill the void that Mario sir has left in our lives. I would like to extend my vote of thanks on behalf of Charkha for today's Sanjay Ghosh Media Award 2020 program. To all the awardees, congratulations once again. I hope you will continue to amplify the voice of the marginalized communities from your respective areas. A very warm thanks to our special guest, Ms. Rajni Bakshi, who has found time to grace this occasion. Ms. Neetu Singh for enlightening our awardees and trainers with their experience. Ms. Priyanka and Mukti for their wonderful performance. I also express my heartfelt thanks to our President, Mr. Tilak Mukherjee, Secretary, Ms. Usha Rai, Treasurer, Mr. Anil Singh, and distinguished members of the boards, Ms. Sumita Ghosh, Mr. Matthew Cherian, for their continued guidance and support. Also special thanks to VG ma'am, Ila ma'am, Indra ma'am, and thanks for taking time out and being here with us. Thank you all the volunteer trainers and staff of Charkha for making SGMA 2020 program a success under the support of Human Capabilities Foundation. Thanks again to all of you, those who are present in today's meeting and those who are unable to attend the meeting. We wish to receive the same support and guidance from all of you as always in future endeavors as well. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Trak sir, अब आगे इजाजत हो तो हम सेरेमनी को क्लोज करते हैं. आप लोग सब कोई जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. थैंक यू चेतना एंड थैंक यू अक्षय. आप लोगों ने बहुत आप लोगों का सपोर्ट रहा इस सेरेमनी को इतना बेहतर बनाने, इतना खूबसूरत बनाने के लिए, इतना यादगार बनाने के लिए. थैंक यू. शुक्रिया आप सभी लोगों का. थैंक यू. Thank you. Thank you all. Thank you. Well done. Very well organized, all of you.
थैंक यू सभी को धन्यवाद। Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.